کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. 20 دنوں میں اچھا لگا جی. علماء کہتے ہیں گستاخ ہے, بے ادب ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اولیاء کا گستاخ وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں. آپ کو اچھا لگا؟ اس میں اس کا سمجھنے میں فرق ہے, لیکن مجھے سمجھ آئیے. انسان ہے, انجینئر صاحب انسان ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے, میں نے تو نہیں کوئی سنی, اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ ان سے کون سا نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے جو ان سے تفسیر پڑھاتے ہیں نا, وہ ان کو جو میں نے جو ان سے کہہ لیں کہ ریفرنسز جو ان سے دیے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح مسلم سے, صحیح بخاری سے, ٹھیک ہے, نوٹس بنائے ہوئے ہم نے, تو وہ مطلب کہہ لیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو تو مطلب یہ چیزوں کا کس طرح پتہ ہے. مطلب میں نے ایسا سنا ہے, پتہ نہیں, میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں کلیئر ہوں نہیں ہوں, لیکن میں نے سنا ہے کہ بندے کی ایم فل کی ڈگری ہونی چاہیے, ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو بات کرے بابا جانی کو سمجھ نہ آئے. صحیح ہے, بابا جانی جو کرے سمجھ نہ آئے. لیکن آج جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو ان کا جو اینٹی وینم سٹائل ہے اور جو پکی سٹائل ہے وہ ریلی بنتا ہے. اس طرح کے ماحول میں وہ واقعی بنتا ہے. یہ توحید کرتے ہیں, لیکن ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, کہ توحید کے ساتھ اپنے بابوں کو بھی انہوں نے مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا ہے. بالکل 5 کے 5 ہو, یہ 5 ہی غلطیاں ان کی ماننے والی ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے, نہ انجینئر صاحب فرشتے ہیں, نہ ذاکر نائک صاحب فرشتے ہیں, کیونکہ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے, اور ذاکر نائک صاحب سے یہ 5 غلطیاں صحیح ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے بتایا نا کہ یہ سمجھ آ گئی کہ انسان سے اگر صحیح ہے تو ان سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی, انسان ہے. اگر بندہ سچ بولے گا تو ہمیں ہر کسی کا ساتھ دیں گے. یہی ہمیں انجینئر نے سکھایا اور یہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بے شک جی, بے شک. ہاں جی, تو اگر انجینئر بھی کوئی غلط بات کرے تو ہم اس کے بھی خلاف ہو. اب بار بار ایک بندہ آگے ہمیں چھیڑے اور وہی ٹاپک پھر سے کچھ نکالے منہ سے, اس لیے بیان کیا. جو موقف تھا وہ ریکارڈ ہے. تو وہاں پہ بڑی مخالفت ہے, ظاہری بات ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ انجینئر صاحب یہ ہیں, تو ہمیں تو پتہ ہے بھئی وہ حق کی بات کرتے ہیں, اور ہم ایسے نہیں کہتے, حالانکہ ہم بات سنتے ہیں پھر اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے کر رہے ہیں. جنہوں نے اپنے فرقے چلائے ہوئے ہیں انہوں نے کیا ملنا ہے کسی سے. بے شک ایسے ہی ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے مل رہے ہیں. انہیں اگلے دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, شیشے کے ڈبے میں بند کر کے عوام کو بلایا جا رہا ہے کہ ان کی زیارت کر دیں. وہی کہنا ایک مقصد ہے, ٹکٹ لگا لی, وہ کمانا ہے, مقصد ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حال میں ریکارڈنگ ہو چکی ہے ختم. حال میں آئے لوگوں سب کچھ بات کرتے ہیں, تو آئیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد ریاض. ریاض بھائی کدھر سے آیا؟ میں ساہیوال سے. ساہیوال سے جی. اکیلے آیا؟ نہیں, میرے ساتھ ایک اور دوست بھی ہے. کیا خیریت تھی, کیا کرنا تھا, کوئی پروگرام تھا, کوئی آؤٹنگ کا, کدھر نکلے ہیں؟ نہیں, بس ادھر ہی آئے ہیں, بس اکیڈمی میں. بس ایک خواہش تھی دل کی. اچھا, کب پیدا ہوئی خواہش, کیسے تعارف ہوا انجینئر صاحب کا؟ میرا جو دوست تھا نا پہلے, انضمام الحق. اچھا, کرکٹر؟ نہیں. اچھا, کوئی آپ کا دوست. ٹھیک ہے, رشتے دار بھی ہے, تو وہ اس کو بہت چاہتا تھا. انجینئر صاحب کو؟ جی, انجینئر صاحب. آپ نہیں جانتے تھے اس وقت؟ نہیں, میں نہیں جانتا تھا. آپ کو تعارف کب ہوا؟ مجھے تعارف ہوا کہ تقریباً 20 دن ہوئے. اچھا, جی. اس نے مجھے بس اس کو ایک ویڈیو سنوائی ہے, تو بہت مجھے اچھا لگا. ہاں, تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک دفعہ تو اسے ملنا ہی ملنا ہے. 20 دنوں میں اچھا لگا جی. علماء کہتے ہیں گستاخ ہے, بے ادب ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اولیاء کا گستاخ. وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں. آپ کو اچھا لگا؟ اس کا سمجھنے میں فرق ہے, لیکن مجھے سمجھ آئیے. تو ہم بائک پہ آئے ہیں, موٹر سائیکل پہ آئے ہیں, رات کو وہاں سے نکلے ہیں, صبح ادھر پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے. آج پروگرام دیکھا سارا؟ جی, پروگرام دیکھا. آج پروگرام بہت اچھا لگا. ناشتہ بھی بہت اچھا کیا.
है। हाँ, नाश्ता भी अच्छा किया है, चाय भी पी है, तो तकरीबन मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कितने आके। पैसे लगे नाश्ते करने के? कोई पैसा नहीं लगा, नहीं नहीं, फ्री फ्री नाश्ता। अच्छा जी ठीक हो गया। चले मुलाकात करते हैं। जी, अभी मुलाकात करेंगे और पिक्चर बनवाएंगे उसके साथ, फिर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। किधर से हो? लाहौर से। लाहौर से जी। अकेले? नहीं, 12 जने। 12 जी? पहले हम 2 आए थे, मैं हाँ। और मेरा दोस्त। फिर अब हाँ। अगली दफ़ा 10 लेके आए, अली भाई ने कहा था। 12? हाँ, ये टोटल स्कूल 12 करा के आए हो? हाँ, कैसे आए हो? गाड़ी में आए हैं और कैसे? नहीं, पूरी बस थी अपनी? नहीं नहीं, बस पूरी नहीं थी, 6 बंदे गाड़ी में आए हैं, 6 बंदे बस में आए हैं। माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, ये जो 12 बंदे हैं, ये सब दोस्त हो? सब इनमें से तकरीबन 3 तो जो हैं वो एजड हैं, ज़्यादा हैं, 40 प्लस हैं हमारे साथ। वो हमारी फैक्ट्री में जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ के लोग हैं। किसकी ये मेहनत है ये? ये मेहनत हम एक दफ़ा होके गए थे। हाँ, हाँ, वो हाँ। तस्वीर की मेहनत है, वो जो दावत उसका- कर रहे हो? दावत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो बंदे आए हैं, ये तासुब का शिकार तो नहीं है, या ना, खुद देखने आए खुद हैं, आए या हैं। हक़ाइक़ समझ गए हैं? क्या बिल्कुल मसला? हक़ाइक़ समझ के फिर आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं। और हमारे साथ उनको गुफ्तगू करके अच्छा लगा, क्योंकि अली भाई की जितनी बातें उनको उन्होंने हदीस से जो बातें बताई हैं, रसूलुल्लाह के अहकामात उनको बताए हमने, और उन्होंने हक़ कबूल किया। उनकी भी अच्छी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, आज पूरा प्रोग्राम देखा? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा था आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे। अभी मुलाकात हुई है इंजीनियर साहब? बिल्कुल, ये हो गई तस्वीर ले ली। ओके, चलो, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम जैन अली है। जैन अली भाई, किधर से? गुजरांवाला के करीब से आया हूँ। गुजरांवाला के करीब? जी, जी। अकेले? नहीं, दोस्त आए हैं साथ में, 5 दोस्त। क्या करने हैं, खैरियत है? नहीं, इंजीनियर साहब के स्पेशल मिलने आए हैं। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम था थोड़ा घूमने फिरने का। कब से जानते हो इंजीनियर साहब को? तारुफ कैसा रहा? तकरीबन मेरे 2.5 साल हो गए। इससे पहले जो मेरी तालीम थी इस्लाम के बारे में, वो कोई नहीं थी। हमें शुरू से यही समझाया गया था कि कुछ भी सोचना, कुछ भी पूछना हो तो हमारे मस्जिद के मौलवी के। जब से इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो किताबें पढ़ना शुरू की हैं, तो बहुत सारा इल्म हमें नॉलेज गेन हुआ है। तो इसी शौक़ से आज मिलने भी आए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा आज का टूर। उलमा कहते हैं इंजीनियर साहब को नहीं सुनना, आप कहते हो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उलमा जो भी उलमा, अब ये भी तो उलमा है। अगर वो इंसान है, इंजीनियर साहब इंसान है, अगर वो कहते हैं कि अगर इनसे कोई गलती हो भी जाए, मैंने तो नहीं कोई सुनी, अगर हो भी गई है तो वो उनसे कौन सा नहीं हुई भी, उनसे भी तो होती हैं। उनसे भी होती है। हाँ, तो हम कौन सा उन्हें सुनना ही छोड़ देते हैं। अब ये कि हर जो फ़िरका है वो एक दूसरे के फ़िरके को उलमा को गलत समझता है। ऐसे ही। यही साहब इंजीनियर साहब ने फ़िरकों का ख़त्म ही कर दिया सारा मसला। तो इसलिए मैं इनका जो है ना फ़ैन हूँ, और थोड़ा शौक था इसलिए मिलने आया। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। इसलिए मैं आज के दिन ये समझ आ गई कि इंसान, डॉक्टर जाकिर नाइक उन्होंने बताया ना कि ये समझ आ गई कि इंसान से अगर सही है तो उनसे गलतियां भी होती रहती। इंसान है, वो इंसान है। सुनना है, सबको सुनना है। अच्छी चीज़ अगर कोई भी बताएगा आपने उसे सुनना है, और गलत अगर बताएगा तो वो नहीं, उसका साथ नहीं देना। अच्छा, क्या लगता है इंजीनियर साहब आज देखो बैठे हुए हैं, जी, जी। पब्लिक आई हुई है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं जी। अपना ID कार्ड दिखाते हैं, आते हैं, मिल भी लेते हैं। क्या लगता है और कोई आलम दीन मैं कहता इस तरह हूँ दीन की खिदमत कर रहा है? कोई भी नहीं। अगर आप किसी आलम दीन के पास जाएंगे तो वो आपको मिलने क्या देंगे, आपके उसके पास भी नहीं रहने देंगे। सिक्योरिटी होगी ऐसे कि उसे, अब जैसे वो इंजीनियर साहब जैसे कहते पापा जानी, वो इलियास कादरी, उन्हें अगले दिन मैं वीडियो देख रहा था, शीशे के डब्बे में बंद करके अवाम को बुलाया जा रहा है कि उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। हाँ। वही कहना एक मकसद है, टिकट लगा ली, वो कमाना है, मकसद हो गया सारा पैसा यही। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? अब्दुर्रहमान। अब्दुल आगे हो थोड़ा सा। किधर से हो? गुजरात से। गुजरात जी। गुजरात। ये अकेले? नहीं, 7 दोस्त हैं। कितने दोस्त आए हो? 2 दोस्त। जी। अच्छा, गुजरात से झेलम आए, फर्स्ट टाइम आए? जी, फर्स्ट टाइम। कब से सुन रहे हो इंजीनियर साहब को? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? हाँ जी। आपके गुजरात वालों ने तो इनके ऊपर इनके ब्लड मनी रखी हुई थी ब्लड इनकी मनी ना? रखी थी। पता है? पता सब पता है, लेकिन वो उनकी- अपना अकीदा एक बन चुका है कि इनको सुन के दिल को सुकून मिलता है, और साथ अपने दोस्तों को गाइड करते हैं कि इनको सुने, कॉपरेट कर रहे हैं, अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं इनके अच्छा, साथ। आपको तारुफ कैसे हुआ? मेरे दोस्त आए हुए हैं साथ, उन्होंने करवाया, सियालकोट से आए हुए हैं। नेगेटिव करवाया था, पॉजिटिव करवाया था? नेगेटिव। क्या कहते थे, क्या करता है ये? क्या रहे थे कि बस ये तो ईद के दावत दे रहे हैं, सीधे रास्ते पे लगा रहे हैं, आप इनकी बात को माने, ये जो कह रहे हैं ये सच है, हक है,
कुरान पे सुन्नत के मुताबिक ये बात करते हैं। आप उससे पहले किस फिरके को मानते थे? पहले ये जो पापा जानी हैं, पापा मदनी मुन्ने थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, उनको छोड़ गए हम इधर से, ठीक होगा। फिर इधर आ गए हैं, बस सुकून अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। मैं अपने दोस्तों को भी गाइड करता हूँ, घर वालों को भी, कि इस राह पे चलें। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बेशक। लेकिन जो सीधा रास्ता आपकी मौत में मरना है। बेशक बेशक। बस अच्छा, ये आज आए आपने प्रोग्राम देखा, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। उलमा मना करते हैं, इधर आने से रोकते हैं, वो कहते हैं ना जाओ, बदतमीज, गुस्ताख है, बेअदब है ऐसी कोई बात नहीं? किसी ने नहीं कहा अभी तक तो मुझे। आपको नहीं ना कहा? उलमा कहते हैं। बस आपने कहते हैं। देखा इनको इस तरह की कोई इनमें बात नहीं देखी? साहब, नहीं देखा। नहीं देखी। चल, जज़ाकल्लाह। आज और कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? वसीम अहमद, वसीम भाई किधर से? बुरे वाला से। बुरे वाला जी। वकार यूनुस का शहर है वो जी, करेक्टर वकार यूनुस बिल्कुल। मशहूर है, इसलिए वो शायद बिल्कुल, मशहूर है। अच्छा जी, वेलकम आपको जेएलएम अकेडमी में। अकेले आए हो? नहीं, दो दोस्त हो? ये ना साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा जी, ये दो भाई आपके साथ हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सलाम, मोहम्मद फ़हीम। फहीम। आपका? नुमान सोहेल। नुमान। जी इकट्ठे आए हो तीनों? जी जी, हम दोस्त हो? सारे- जी दोस्त हैं। किसने किसको तारुफ करवाया? बेसिकली इन तीन दोनों से सबसे पहले मैं स्टार्ट किया था। तो भाई, ये मेरे भाई दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये उनके रेफरेंस है। तो इससे नेगेटिव तारुफ हुआ था उस्ताद मोहतरम का, तो मेरे से डिबेट की इसने और बातचीत की, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे कायल कर लिया। और इसकी अब सेकंड बार है उस्ताद मोहतरम को जेलम आने के लिए, मुलाकात के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कायल कर लिया है इसे। ये नाउज़ुबिल्लाह उस्ताद मोहतरम को गालियाँ भी देता था, खैर है, उन्होंने माफ़ किया। उन्होंने माफ़ किया, वो उनका जी जी। ज़र्फ़ है। तो अल्लाह जिसे हिदायत दे, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अल्लाह, अगर आप उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि अगर गुमराही के उल्टे रास्ते पे चल पड़ोगे ना साफ नीयत से, तो जी। आपको अल्लाह बिल्कुल। कान से पकड़ के सीधे बेशक। रास्ते पे लगा देगा। बेशक। तो ये एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अल्लाह ताला ने दोस्त दी। अच्छा जी, आप गालियाँ देते थे, किस बिना पे देते थे? आज basically आज मैं- उन लोगों को भी बताए ना जो अभी भी दे रहे हैं ना, जिनके लिए भी तो एक ये सुनने की बात है ना। बिल्कुल। मैं बेसिकली देवबंदी हमारे मतलब कह लें कि मसलक से हमारा तल्लक था पहले तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। ठीक है। ठीक है। अब कह लें कि मेरी फैमिली में मतलब सारे कह लें कि फैमिली में ना, यानी कह लें कि एक मतलब हाफिज़ है, लेकिन मतलब जो उनसे रिसर्च है मतलब कुरान और सुन्नत से, वो किसी चीज़ पे भी नहीं है। यानी बस ये है कि सुना के उनसे सुननी होते हैं ना, वो वाला साहब होता है। अब जब मैंने इंजीनियर साहब, यानी पहले हमें नेगेटिव तारुफ हुआ था, यानी वो कह रहे थे कि मतलब सबसे सुना था कि गुस्ताख़ रसूल है, कादियानी है, ये है वो है। लेकिन नुमान भाई से जब मेरी थोड़ी बहुत यानी मुलाकात हुई, मेरा स्नूकर क्लब था, मेरे पास खेलने के लिए आते थे, तो इन्होंने थोड़ा सा मुझे तारफ़ करवाया। फिर मैंने सुनना शुरू किया, फिर मौलाना इसहाक मदनी साहब, फिर मदूदी साहब को मैंने सुना। डॉक्टर इसरार अहमद साहब को तो मैं पहले सुनता था, वो मेरे फेवरेट स्कॉलर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यानी कह लें कि हदायत मतलब देनी थी, नसीब में थी, अल्लाह पाक ने इस रास्ते की तरफ यार, मेरा सवाल बीच में रह गया। मैं कह रहा था, जब आप उनको गालियाँ देते थे, बुरा भला कहते थे, वो किस बेस पे देते थे? बस इसी बेस पे, यानी कह लें तहकीक नहीं थी, तहकीक नहीं थी। जाहलियत थी तब, यानी कह लें कि सुनी सुनाई बात से आगे कर देते थे। जी बिल्कुल। लेकिन जब कह लें कि मैंने उनके मतलब रिसर्च करना स्टार्ट की, अब मैं अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो उनसे कह लें कि जो बड़े बड़े मेरा मतलब कह लें कि हमारे रिश्तेदारों में मतलब आलिम है, और अब उनसे मेरी डिबेट होती है। भाई को पता ही है, हमारी कल परसों भी एक मौलाना कह लें कि वहाँ पे तफसीर पढ़ाते हैं, जब उनसे डिबेट हुई कह लें कि बनु मैया पे, वो काफ़ी जन से टॉपिक हमने छेड़े महाज खोले। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च इतनी हो गई है कि वो इनको भी पता है कि वो भाग जाते हैं। उन्होंने अपने जो उनसे तफसीर पढ़ाते हैं ना, वो उनको जो मैंने जो उनसे कह लें कि रेफरेंसेस जो उनसे दिए हैं, ठीक है, सही मुस्लिम से, सही बुखारी से, ठीक है, नोट्स बनाए हुए हमने, तो वो मतलब कह लें कि कहते हैं कि भैया आप लोगों को तो मतलब ये चीज़ों का किस तरह पता है। ठीक है। और मेरे कह लें कि एक कज़न है, वो आलिम है, वो कह लें कि रफ़ा दैन पे ना बड़ी बहस करते थे। उनकी जो सी हदीस थी जो सी निसाई की जो सी है 1185, ठीक है, वो अब्दुल्ला बिन मसूद वाली पेश करते थे। तो हमने मतलब उस पर रिसर्च की, नुमान भाई में बैठे, फिर हमने उसको यानी कह लें कि हमें जब पता चला, उस्तादियों को सुनते थे, तो पता चला 1185 के आगे 1186 भी पढ़नी चाहिए। जब उनको हमने पेश की तो वो कह लें खुद ही शर्म से पानी हो गए।
ٹھیک ہے. اور کہہ لیں کہ وہ جو ان سے کہہ لیں کہ جب ان کو پیش کی تو وہ اب ان کو مطلب کہہ لیں کہ کافی حد تک وہ مطمئن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اب ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ بھائی جون سی ہے جون سی انجینئر صاحب ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہر جون سی چیز ہر بندے کو ہضم نہیں ہوتی, جب تک ریسرچ نہیں کریں گے تو تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو بندے آپ کی طرح بغیر سنے بغیر دیکھے انجینئر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہو گے؟ ان کو بس یہی ہے میسج کے تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے یعنی کہہ لیں کہ گمراہی کے راستے بند کر دے گا اور ہدایت کے راستے کھول دے گا. اب میں سے مطلب عمرہ کرنے گیا تھا, میں نے وہاں پہ جا کے مطلب چیک کیا رفع دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد جون سی قبر پرستی کے متعلق بھی جون سے میں نے وہاں پہ دیکھا ہے, جنت البقیع میں گیا ہوں, وہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جون سے دیگر صحابہ کرام ان کی جون سے کہہ لیں کہ قبریں دیکھی ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں, اور وہاں پہ ایک سنت والا ماحول دیکھا ہے. اور جب یہاں پہ دیکھتے ہیں پاکستان میں تو اچھا آج آئے, آج اکیڈمی کا ماحول دیکھا, کیسا رہا آج کا پروگرام؟ یہ میرا سیکنڈ ٹائم جو سا کہہ لیں کہ اکیڈمی کا وزٹ تھا الحمدللہ. یعنی کہہ لیں کہ استاد جی تو اب کہہ لیں کہ مولانا اسحاق صاحب, جو سے مدینہ صاحب, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, مولانا ممدودی صاحب, یہ کہہ لیں کہ اب میں ان کو سنتا ہوں الحمدللہ. اور کہہ لیں کہ یعنی استاد ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عزت یعنی اس حوالے سے کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مطلب کہہ لیں کہ بدعت کے دور میں نا کہ ایک خالص دین جو سا کہہ لیں کہ وہ پیش کیا. ہمیں پہلے یعنی کہہ لیں کہ اہل بیت کے بارے میں مطلب یعنی سب پتہ تھا, لیکن جب ان کی میں بتاتا ہوں پتہ تھا لیکن وہ چیز نہیں تھی. جب کہہ لیں کہ اہل بیت کا نام آتا تھا تو وہ کہہ لیں کہ جون سا اندر والا جون سا بغض تھا نا بنو امیہ کے جون سے کہہ لیں کہ حق میں, وہ مطلب کہہ لیں کہ آ جاتا تھا. لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بنو امیہ نے جون سے ہم سے کہہ لیں کام ڈالے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اب کہہ لیں کہ یعنی جون سے دیر خم کی جون سے حدیث کے بعد الحمدللہ الحمدللہ جون سا ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز ہمیں بتا دی ہے, جو ان کا حکم ہے نا, نہ ان سے آگے نہ ان سے پیچھے. ٹھیک ہے. اچھا بھیا آپ سنائیں, جی آپ کا جو تعارف تھا وہ بھائیوں کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے کون سا مکتبہ فکر فالو ہو رہا تھا؟ جی شروع سے ہم انہیں کو سن رہے ہیں, انجینئر صاحب. اس سے پہلے چھوٹا بھائی بھی نہیں تھا, ٹھیک ہو گیا. چھوٹا بھائی بھی سن رہا ہے, گھر میں ساری فیملی. علماء نے روکا کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے تو سنا تو ہوگا کہ انجینئر کو نہیں سننا, یہ کزنوں نے معمول لوگ ہیں, کافی لوگ ریلیٹیو ہیں, ان لوگوں نے منع کیا کہ نہ کہاں جا رہے ہو, یہ وہ. کیوں منع کرتے ہیں؟ بس اچھا نہیں ہے, یہ قادیانی وغیرہ ایسا کہتے رہتے ہیں, بس بغیر جانے بغیر سمجھے. ہاں اسی طرح بالکل ٹھیک ہو گیا. آج آپ نے آگے دیکھا جی ہے, اچھا بہت اچھے, کوئی قادیانی کوئی سپورٹ کرتا ہو کچھ ایسا کوئی چیز ایسا کوئی چکر نہیں. چلے بہت شکریہ, جزاک اللہ. آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا علی حیدر. علی حیدر بھائی کدھر سے ہو؟ میں لالا مسا سے. لالا مسا سے اکیلے آئے ہو؟ جی. میرا علی بھائی سے سوال ہے, ہمارے ادھر ایک قبرستان ہے, اس کے ساتھ ہے دربار 9 گز, تو اس میں قبر بھی 9 گز لمبی ہے. کیا وہ واقعی قبریں ہوتی ہیں کہ ایسی انہوں نے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں؟ تو یار ابھی بنائی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جتنے بھی امتی ہیں جی ان کے اتنے قد تھے نہیں, تو چھوٹا سا سوال ہے. صحیح. ہاں یہ سوال تھا میرا علی بھائی. یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ پیر صاحب ہے, وہاں پہ بھی ہے. صحیح. جاتے ہو قبر میں؟ نہیں میں نہیں جاتا. مزار پہ دعا شعا مانگتے؟ کہیں بھی نہیں, نہ میرا والد مانتا تھا نہ میں مانتا ہوں قبروں. کیوں, وہ کیا تھے, بھابی تھے؟ نہیں. کیا تھے؟ سنی تھے بس, ابھی مسلم ہے. اچھا جی مسلم. چلے بہت شکریہ جی. ہاں جی, اور کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹا؟ محمد اسماعیل. محمد اسماعیل. اکیلے آئے ہو؟ نہیں, ابو کے ساتھ. کون سے ابو دے رہے؟ مادن. اچھا, کیا کرنے آئے تھے؟ درس سننے. درس سنے؟ سوئے تو نہیں ہو؟ نہیں. سچ بولنا. نہیں سویا. نہیں سویا؟ اتنی دیر 3.5 گھنٹے جاگتا رہا. اچھا سنا, کیا سنا؟ نعرہ مار کے دکھا. سورج کے جیسا ہے ہی کونی, بابے تے شے ہی کونی. چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ تنویر. تنویر بھائی کدھر سے آئے؟ کراچی. کراچی سے جی. اکیلے؟ نہیں, 4 دوست ہم ساتھ ہیں, ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم جاتے ہیں. کوئی اپنا نہیں, کوئی خاص کام نہیں ہے یہاں پہ, کوئی کام نہیں ہے, صرف انجینئر صاحب سے ملنا ہے. ہم نے انجینئر صاحب کو ویڈیوز میں دیکھا, سنا, آج ہم نے لائیو بھی دیکھا, اور یہاں کا انوائرمنٹ بھی کافی اچھا ہے. اگر آپ کسی ایسی مشہور شخصیت سے کہیں کراچی میں ملنے آتے ہیں تو پہلی بات تو رش بہت ہوتا ہے, پھر ان کے پروٹوکول زیادہ ہوتے ہیں, پھر یہاں پہ کافی ساری چیزیں یہ اچھی ہیں کہ ٹوکن دیا جا رہا ہے, کوئی چارجز نہیں ہیں, اور باقی کافی ساری چیزوں کے بھی چارجز نہیں. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی, یہ بات مجھے نہیں پتہ تھی.
हो सकता है एंड में ले, अभी कैसे हाँ, पता थी? नहीं एंड में लेंगे भी तो दे देंगे। कराची वालों का दिल जेब दोनों बड़ी होती है। कोई वो मसला तो ही पता है जी, जेब बड़ी की भी है उलमा ने आपकी। नहीं असल में वहाँ चंदा सिस्टम है, यहाँ नहीं है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, कुरान से रिलेटेड बताई हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें सुनने को मिली और बहुत एक्सपीरियंस हुआ यहाँ आने के बाद। ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे, नींद और मेहनत सब ज़ाया हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, हमें बहुत मज़ा आया और आगे चीज़ें भी सीखने को हमें मिली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपने और दोस्तों को भी भेजेंगे आगे। इंजीनियर साहब को आप कब से सुन रहे हैं? इंजीनियर साहब को मैं तो ख़ास नहीं सुनता, मेरा एक दोस्त है वो सुनता है, तो उसी के साथ हम आए। आपने आज फर्स्ट टाइम उनको सुना? हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने लाइव सुना है। हाँ। और वीडियोस में बस एक आध क्लिप इससे मैंने। पहले जो आपके कायदे नजरियात थे वो क्या थे? नहीं, पहले हम वो करते थे, नजरों न्यास करते थे, काफ़ी सारी तो चीज़ें ये तो ऐसी बिल्कुल करते थे। ये अगेंस्ट है। अब समझ आई है? हाँ, ये समझ आई हैं। अभी भी शुरू में थोड़े टाइम पहले की थी हमने, लेकिन अब इससे हम बिल्कुल वो हो जाएंगे कि नहीं करनी चाहिए, इससे हम थोड़ा दूर रहेंगे। ये है शिर्क होता है, हमें काफ़ी चीज़ें नहीं बताई गई हैं काफ़ी उसने, तो ये है कि यहाँ हमें पता चले, तो इंशाल्लाह आगे हम एहतियात करेंगे ही नहीं ऐसा। बिल्कुल सही है। और जो बात आपको भी क्लियर नहीं हो रही ना, आपका काम है उसको छोड़ना नहीं है, तहकीक करना, बिल्कुल पीछे पड़ जाना उसके। जी हमारी आखिरत का मसला बिल्कुल ऐसा ही है। रिसर्च करेंगे, रिसर्च कंप्लीट होगी, कोई भी सवाल होगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। हाँ, इनको बेशक वो चीज में गलत है, तहकीक करो ना। बिल्कुल, हाँ, उस बात किसी तक पहुंचो। जब तक नहीं पहुंचेंगे तो क्लियर नहीं होगा, और क्लियर होगा तो मेरे साथ और 10 लोग भी क्लियर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे। बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं तो नहीं आऊँ, बिल्कुल मुलाकात हुई है, पिक्चर भी हुई है बहुत अच्छे से। अच्छा, पापा जानी उधर बैठे हुए होते हैं और बड़े बड़े उलमा उधर हैं, वो भी मिलते हैं इस तरह? बापा जानी का जो मैंने सुना है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वो है उनका कि बहुत प्रोटोकॉल्स हैं उनके। मतलब मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं, मैं पहले ही बता दूं कि मैं क्लियर हूँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बंदे की एमफिल की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, ताकि वो जो बात करे बापा जानी को समझना है। सही है। हाँ, बापा जानी जो करे उसको समझना है। डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, वो उनके साथ रहे, सेशंस में रहे उनके, फिर उनके साथ हर उसमें इवेंट में रहे, उसके बाद उसका आना जाना हो तो फिर वो मिल सकता है। क्यों बापा जानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं है? पता नहीं क्या कह सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन ये इंजीनियर साहब का ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो कराची से टिकट कराई, हम बैठे, रात को हम आए, हम होटल पर रुके और हम सुबह यहाँ आ गए। इधर ऐसा नहीं है कि आपकी एजुकेशन इतनी कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी यार आपने दीन सीखी ना, हमें क्या लगे, आपने उम्र दी हो। लेकिन उनका कुछ ऐसा है, मैंने सुना है। अच्छा। हाँ, तो मैं कराची में रहता हूँ, मैं एक बार भी उनसे मिल नहीं सका। चले जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भैया? सलमान भाई किधर से है? मैं पाकपतन से। पाकपतन से? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ख़ानदान में पहला हूँ जिसका किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक नहीं है। बिश्ती दरवाजा उधर ही है? हाँ जी। गुजरे कभी? नहीं, कभी भी नहीं, ज़िंदगी में नहीं। मेरा शुरू से कब्र परस्ती में मतलब दिल ही नहीं आया कभी। अच्छा, कब्र परस्ती पे आपको शुरू से बिलीव नहीं? बिल्कुल। दरबारों में जाते। घर वालों का क्या बोल था? घर वालों का यही है कि वो जी हमने वो करते थे। हाँ, मेला आना तो मेले पे मेहमान वगैरह आते थे, बाबा फरीद के लंगर पकते थे, मैं खाता ही नहीं था शुरू से दिल नहीं था, दिल ही नहीं करता था, पता नहीं अजीब सा दिल ही अजीब सा होता था। सारे खानदान वाले भी चले, हाँ मैं बाहर रहना पसंद कर लेता, लेकिन दरबारों में नहीं जाता था, सारे जाते थे घर वाले। नहीं था उस वक्त कोई किसी किस्म का लालच दिल में शुरू से नहीं आया। फिर इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया, माशाल्लाह। कैसे आए जिंदगी में? कैसे? ऐसे ही रैंडम वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, पहला शॉर्ट्स उनका देखा था। अच्छा, उससे पहले तारुफ नहीं था ये बंदा को? तारुफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि लोगों ने तो इनके बारे में गलत ही फैलाया हुआ था कि यार ये बंदों को गुमराह करता है और ये ब्रेन वॉश करता है। जब मैंने देखा तो हज़रत ईसा इब्न मरियम वाली थी कि वो किसी के नफ़ा के ना मालिक है ना नुकसान के। तब से मैंने जो है ना उनको ज़रा ब्रीफली सुनना शुरू किया। ये मेरे दोस्त आए हैं, ये भी मेरे साथ हैं, पाकपतन से आए हैं, सॉरी ये कोहाड़ से आए हैं, ये एक मेरे दोस्त पाकपतन से आए हैं। तो इनको मैं लेके आया कि मैं कहा चलो यार गुमराह कर रहे हैं। हाँ जी। बेशक अभी मेरे खानदान वाले मुझे सही बुलाते ही नहीं है, मेरे घर वाले नहीं सही बुलाते मुझे सही। बहुत शुक्रिया बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम। आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। किधर से दोनों? दरियाला से। बाकी आए हो घर से? नहीं। किसके साथ आए हो? वो अंकल है हमारे चाचू, उनके साथ जी। वो तुम्हें भी ले आए जी? आने का दिल था कोई नहीं? था। क्यों, क्या कर रहा था इधर? इधर आके बयान सुनना था। बयान सुनते हो इस उम्र में? ग्राउंड में खेलो जाके। नहीं हम बयान सुनते। आप बताओ, आपको जबरदस्ती लेके आया ना? नहीं, खुद आए हो? जी। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता।
अरे अल्लाह अकबर, किस चीज़ में मज़ा आता है? बयान सुनने में। अच्छा, बयान इससे पहले सुनिए इनके? जी। क्या बयान सुन? अच्छा नारा बताओ, कौन सा नारा मारते हैं ये? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबा तो है ही कोई नहीं। आए ओए जिंदाबाद। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। आओ जी, और कौन है? वालेकुम सलाम भैया, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है भैया? मोहम्मद इमरान अनवर। इमरान भाई किधर से? लाहौर से। लाहौर। लाहौर से कितने बंदे हैं आप लोग? मैं अकेला ही आया हूँ, काम भी आया था इधर तो। यार बड़े बंदे, एक 12 बंदों की टीम आई हुई है। हाँ जी, आए हुए काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे मिला हूँ। आप किधर से? मैं आया हूँ स्टेशन के पास, शालामार बाग के पास। ठीक हो गया। कैसे आना हुआ? मैं बस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टार्टिंग में तकरीबन 3-4 साल पहले इनके मैंने लेक्चर स्टार्ट किए, तो मैंने ख़ुद रिसर्च की इनकी वीडियोस पे, इनके हवालाजात पे। तो मुझे इनकी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक तो ये कि जो इन्होंने तौहीद को और इसके साथ जो बाबे को मुंसलिक करके जो जितना अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है ना, वो सुपर्ब है। और दूसरा जो इनका चंदा सिस्टम नहीं है, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और शायद मेरे आने की वजह भी आज यही है। फर्स्ट टाइम आया? जी फर्स्ट टाइम आया। देखा है चंदा सिस्टम? नहीं कोई चंदा सिस्टम वेरीफाई करने ही आया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम लगा। तो फिर कैसे निज़ाम चल रहा है? उलमा तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन उठाते हैं, कैसे चला रहा है? कैसे चला रहा है? नहीं वाला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कहते हैं मसला उठाता हूँ नीचे से सोने के खाने। अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो उनकी हेल्प अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से जरूर जी, जो जेब से लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इतना बड़ा कौन सा निज़ाम है। अच्छा जी, आप आए फर्स्ट टाइम, आपने देखा आके, कैसा लगा प्रोग्राम आज का? बहुत अच्छा लगा उनका स्टाइल, जो अग्रेसिव इल्ज़ाम लगाते हैं कि बदतमीज़, बद इखलाक, गुस्ताख भी है और फला फला है, ऐसी कोई बात देखी आपने? वीडियोस में ऐसा फील होता था, तो मुझे भी कुछ बातों पे था, लेकिन आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उनका जो एंटी वेनम स्टाइल है और जो फकी स्टाइल है वो रियली बनता है। इस तरह के माहौल में वो वाकई बनता है। जितनी फ़िरकाबाजी और जितनी वो बातें इनके ख़िलाफ़ करते हैं ना, मेरे ख्याल से इनका जो एंटी वेनम का स्टाइल है ना, वो बहुत अच्छा है। इससे जो देखने वाले हैं ना, मेरे नज़दीक उनको जवाब देने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है। क्योंकि कल को अगर हम इन्हीं के फॉलोअर्स को फेस करते हैं ना, तो जब हम ये वाला स्टाइल यूज़ करते हैं तो इससे बात उनको सही समझ आती है, हाज़मा क्लियर हो जाता है, वो इनका हाज़मा थोड़ा सा बेहतर होता है। ये मुलाकात करें अंदर से? हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंज़मामुल हक। इंज़मामुल हक। इंज़मामुल हक जी, क्रिकेटर जी। उनसे इम्प्रेस होकर तो नहीं नाम रखा था घर वालों ने? हाँ जी, ऐसे ही है। किधर से है? किधर से? साहिवाल से। साहिवाल से, माशाल्लाह। इंज़माम भाई, कैसे आना हुआ? इंजीनियर साहब से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, सुनने के लिए। पहली दफ़ा है? नहीं, दूसरी दफ़ा है। सुन कब से रहे इंजीनियर साहब? सुन तो तकरीबन 3-4 साल से रहे हैं। 3-4 साल से? उससे पहले कौन सा मकतबा फिक्र था? बरेलवी थे। 11वीं वाले। 11वीं करते थे? बहुत ज़्यादा। अब क्या सीन है घर का? अब मैं ही रिबटल हुआ हूँ, बाकी तो बाकी कोई नहीं? बाकी समझा रहा हूँ, अभी तक तो कोई बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब 11वीं पाक रही है तो खा नहीं रहे? नहीं, कोई नहीं, हमारे घर में तो खास पकती भी नहीं है। अच्छा, खास पकती भी नहीं जी, आए तो खा मेरी वजह से ही। अच्छा, क्या वजह थी चेंज होने की? इंजीनियर साहब की कौन सी बातें थी जो चेंज कर गई? ये जो इनका तौहीद पर काम है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपको क्या लगता है ये बरेलवियों को उलमा नहीं करते, सिखाते तौहीद? ये तौहीद करते हैं, लेकिन इनको तौहीद का पता ही नहीं है क्या है, कि तौहीद के साथ अपने बाबों को भी इन्होंने मुश्किल कुशा हाजत रवा बनाया हुआ है, तो इसलिए ये फिर तौहीद का काम तो ना हुआ। तौहीद का काम ना हुआ? चलो बात कर लो इसको पहले। ठीक हो गया। अच्छा, अंदर गए थे, मुलाकात करके आए? नहीं, अभी तक जाना है। जाना। क्या लगता है इस तरह कोई भी बड़ा आलिम दीन पाकिस्तान लेवल का बैठ के आवाम से मिलता है इस तरह? नहीं, कोई नहीं मिलता, इतना टाइम कोई भी नहीं देता। अब बस इंजीनियर साहब फारग वेले बैठे रहते हैं, है ना? नहीं, ऐसे नहीं है, इसलिए ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे नहीं है, इसीलिए ये मिलते हैं। बेशक ऐसे जिन्होंने अपने फिरके चलाए हुए हैं उन्होंने क्या मिलना है किसी से? बेशक ऐसे ही है कि ये अल्लाह की रज़ा की खातिर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अल्लाह का तारुफ करवा रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम भैया? दाऊद फैसल। दाऊद किधर से आए हो? मैं गुजरात से। अकेले आए हो? कज़न और भाई साथ है। ये बच्चे सारे लेके आए हो? हाँ। घर से भाग के आए हो? नहीं,
सच्ची सच्ची बताओ। नहीं मामू साथ ही हैं। मामू साथ ही है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मामू साथ ही है। हाँ जी। कितने बच्चे सारे? 5 हैं। 5 बच्चों को मामू लेके आए? हाँ जी। वो मामू ने सुनने आए, आप लोगों को क्यों ले आए हैं? नहीं हम सुनने आए, मामू को लेके हैं साथ। हैं? हाँ जी। वाकई? हाँ जी। इधर आओ जरा, तुम भी आगे आओ। क्या नाम है? साद साद साद। क्या करने आए हो? सुनने आया किसको? अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपका? सुहेब। सुहेब। और सब सुनने आए हो? हाँ जी। छोटे छोटे हो सारे? हाँ जी। अच्छा, घर वाले रोकते नहीं है? नहीं, नहीं रोका किसी ने? सुनते हैं। सुनते हैं, ठीक हो गया। घर वालों ने रोका नहीं आपको? नहीं। सब आ गए? उनको पता था किधर जा रहे हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, सुना आज? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। मुलाकात की है? हाँ जी। मिलते हैं? हाँ जी। अच्छा, नाश्ता भी किया था? नाश्ता करके आए हैं। घर से करके आए? हाँ जी। इधर नहीं किया? अभी तो वापस जाएंगे तो करेंगे ना। नहीं, सुबह इधर आके नाश्ता नहीं किया? नहीं। अच्छा, लेट आए हो। चलो, अभी चाय समोसा लिया? कौन लिया? नहीं, अभी जाते हुए ले लेंगे। अच्छा, सुना क्या क्या? सच्ची बताओ। हाँ चलो, आप लोग तो इसको इन बच्चों को भी ले आए यार। हाँ जी, ये बस मोहब्बत में आ गए हैं। सोए नहीं होंगे इधर? नहीं, जगाए हैं इनको। शाम को लेट सोए हैं, सुबह फिर भी उठ ही गए हैं, आ गए हैं, फिर बहुत मुश्किलों से आए हैं। चल, जज़ाकल्लाह। आज और कौन है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? अब्दुल रहमान नाम है। रहमान भाई, माशाल्लाह। किधर से? मैं भावलपुर से आया। भावलपुर से? अकेले? मैं अकेला ही आया। खैरियत? बस नहीं, मैं इसी वजह से आया हूँ। मेरे 2 मकसद थे। एक तो जाकिर नाइक साहब, रात मैंने वहाँ पे मतलब किया हूँ, और इतवार के दिन मैंने यहाँ का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि प्रोग्राम तो काफ़ी दिनों से था मेरा आने को, लेकिन मतलब कि बहाना कोई होता है ना, कोई अल्लाह की तरफ से कोई मतलब कि कोई टाइम मिल जाए। तो मैं करता हूँ वैसे लैपटॉप का काम, तो जैसे मुझे टाइम मिला, मुझे एक बहाना मिला, मैंने बोला चलें लाहौर, मतलब कि हफ्ते वाले दिन मैं इधर से हो लूँगा, इतवार वाले दिन मतलब मैं झेलम हो लूँगा। कितना सफ़र है भावलपुर का? ये कितने घंटे का सफ़र? ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर तो लाहौर से है, और लाहौर से उधर तक तकरीबन 450 किलोमीटर, तो राउंड अबाउट तकरीबन 580 या 600 के राउंड अबाउट है। ये अल्लाह के लिए आप निकले हुए? बेशक बेशक। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अच्छा, इंजीनियर साहब को कब से सुन रहे हो? मैं सर माह रमज़ान 20 माह रमज़ान से। ये वाली जो गुजरी? जी जी, यही वाली। इससे पहले कौन सा मकतबा फ़िक्र था? मेरा देवबंद मतलब कि मैं देवबंद मसला को फॉलो करता था, मतलब काफ़ी टाइम से, बचपन। अभी आप क्या है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके हैं। क्यों देवबंद को छोड़ने की वजह और मुस्लिम बनने की वजह? बहुत सी वजूहत हैं, क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत से सवालात थे, मेरे दिल के अंदर ही अंदर ना, तो सवालात अगर कहते तो मैं बता भी देता हूँ, अगर नहीं तो जी बात कर सकते हैं। तो काफ़ी सवालात थे अहले बैत के मामले में, मौला अली के मामले में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ देवबंदियों से भी रहा है, शियों से भी रहा है, और बचपन से मेरे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा करीब ना जाकिर नाइक साहब रहे हैं, बचपन से मैं उन्हें सुन रहा हूँ। थोड़ी सी मतलब ये अक्ल उनकी तरफ से भी आई है मुझे कि भाई अपने आप को मुसलमान कहने का, कि कोई और चीज़ कहने का नहीं है। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो कहता रहे, लेकिन फिर भी एक फॉलो करता था मैं उस मसला को, देवबंदी को। तो फिर ये साहबा कराम का मतलब कि ये इंजीनियर साहब का आया 2019-20, तो मेरा दिमाग भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, मतलब मैं 2 साल तक ना मैं बड़ा खिलाफ रहा इंजीनियर साहब की। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना माह रमज़ान में 20 या 21 की रात थी कि अचानक वीडियो आई तौहीद के नाम पर, वाई अल्लाह इज़ नॉट लविंग आल थिंग, मतलब कि अल्लाह सबसे क्यों मोहब्बत क्यों नहीं करता, जबकि क्रिश्चियंस का ये दावा है। वीडियो देखिए मुझे तो मतलब कि मैं डर गया थोड़ा सा ना, मतलब कि एक होता है ना कि इंसान डर जाता, मैं डर गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता FB पर आती रहेगी पोस्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता सुनते फिर मेरे सवालात करने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ऑटोमेटिकली सवालों का जवाब मिलता गया। वो जितने भी सवालात हैं वो सब रिकॉर्डेड है? सब मतलब कि मुझे मिलते गए स्टेप बाय स्टेप, अल्हम्दुलिल्लाह। सीना खुलता गया? बिल्कुल, सीना खुलता गया। जी ऐसे ही है, सीना इसी में खुलता है, पाक में जैसे फरमान है। जी सीना खुलता है। अच्छा, आप जो बताएं, आज इंजीनियर साहब ने कुछ दीन से हट के कुछ जो गलतियां पॉइंट आउट की हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की, ठीक है, आपके तो दोनों उस्ताद हैं। बिल्कुल, दोनों उस्ताद। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो इंजीनियर साहब ने उनके आगे वो जो उनकी गलती हाईलाइट की है वो सही की है? बिल्कुल, 5 के 5 ही गलतियां उनकी मानने वाली हैं, ठीक है,
सेकंड चीज़ ये है ना इंजीनियर साफ रिश्ते हैं ना जाकिर नायक साफ रिश्ते हैं ऐसे क्योंकि गलती हो सकती है इंसान से और जाकिर नायक साहब से ये 5 गलतियाँ सही हुई हैं मतलब कि हुई हैं गलतियाँ सही मतलब कि मतलब हुई हैं जी हराम हलाल का कोई चक्कर नहीं उनकी गलती है बिल्कुल से गलती है सबसे पहली बात एक तो उनको उर्दू बोलने नहीं आती ठीक है बाकी इसके अलावा और चीज़ें भी अगर आप रख लें तो एक पाकिस्तान से मेरे ख्याल तक उनको थोड़ा वो हुआ है मिसबिहेव मतलब कि वो पाकिस्तान से हो सकता है पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपको पता है क्या रवैया चल रहा है क्या नहीं चल रहा जाकिर नायक साहब के मालूम मुझे ऐसा हो लग रहा है तो कल लाहौर में भी मतलब कि उन्होंने एसपी को भी डांटा और इसके अलावा 1-2 बंदों और को भी डांटा मतलब कि वो हालांकि डांटने वाले नहीं है मैं तो काफ़ी अच्छे से सुन रहा हूँ लेकिन पाकिस्तान में असर पड़ गया भाई यही चीज़ चलो जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह हाँ जी और कौन है हाँ भैया क्या नाम है भैया मोहम्मद नूह जी माशाल्लाह नूह भाई किधर से मैं डेरा गाजी खान से डेरा गाजी खान से अकेले आए हाँ अकेले गया काम था नहीं बिल्कुल कोई काम नहीं था बस इंजीनियर साहब को सुनने आया हूँ जी साहब हाँ कब से सुन रहे हैं मैं इसको रेफरेंस से सुना है मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसरार साहब को सुनता हूँ बहुत ज़्यादा तो फिर ये तो अब नए आए हैं ना 8-9 साल पहले हाईलाइट हुए हैं तो उनके रेफरेंस से अब इनको भी ये तौहीद परस्त हैं तो इसलिए सुनना अभी सुनने का शौक़ हुआ है तो वही शौक़ था कि वो शौक़ ले आया सिर्फ खालसा और कोई काम नहीं था अभी मेरे दोस्त लाहौर में वो कह रहे हैं रुक जाओ इधर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का अभी क्वेश्चन वगैरह होगा ना तो मैंने कहा बस नहीं जाना मैंने मेरा काम पूरा हो गया बस इसका इनका प्रोग्राम अटेंड किया आज कैसा रहा प्रोग्राम ठीक रहा जो बस एक हमारा सोच थी आएंगे बराह रास्त सुनेंगे उनका तो बस वही पूरी हुई और बाकी क्वेश्चन भी करेंगे बहरहाल मेरा क्वेश्चन एक था थोड़ा वो टफ था तो उन्होंने वो सेलेक्ट नहीं किया मेरे क्वेश्चन को तो उनके जो एसओपीज़ उनके खिलाफ जा रहा था अच्छा हाँ तो उस भाई ने उसको रिजेक्ट कर दिया बस क्या क्वेश्चन था वो हज़रत अमीर मौलाना के मुताल्लिक़ था जो रिकॉर्डेड है ना हाँ तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन ही होगा कि वो जो आप बात करें और रिकॉर्ड भी ना हो रिकॉर्डेड होगा मैं सिर्फ मेरा एक मैं नहीं जानता उनका ये इस मुतालिक रिकॉर्डेड है या नहीं आप नहीं जानते ना आप लिख ले जाके मौक़िफ़ जानना था इनका मैं आपको बताता हूँ आप ये मैंने आपसे इसलिए क्लैरिफाई किया कि लोग सुनते हैं वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं भाई का कोई सवाल था इन्होंने लिया नहीं सही ठीक हो गया तो उनके दिमाग में से मैंने ये वहम निकालना था कि सवाल भी बताएं ठीक है अब ये है कि भी आपको नहीं पता ना यहाँ पे बयान इसलिए किया कि लोगों ने तमाशा बना लिया बिल्कुल ठीक हो गया सही है जो मौक़िफ़ था वो बयान कर दिया अब लाजमी तो नहीं ना बार बार आके आप वो हम कहते हैं जी वो साबिर रसूल है बिल्कुल ठीक हो गया हम उनकी इज्जत करते हैं साबिर रसूल है बस ठीक है अब बार बार एक बंदा आके हमें छेड़े और वही टॉपिक फिर से कुछ निकाले मुँह से इसलिए बयान किया जो मौक़िफ़ था वो रिकॉर्ड है समझ आ गई हाँ बिल्कुल ऐसे ही है इंजीनियर साहब का जो मौक़िफ़ है वो सुना हुआ था हाँ मैं तो पहली दफ़ा आया हुआ था तो मेरे दिल में था एक क्वेश्चन लेके ना जी तो फिर कोई बात नहीं सब कुछ रिकॉर्ड कोई बात नहीं हाँ बहरहाल अच्छा हुआ अच्छा महसूस अच्छा लगा अच्छा मुलाकात हुई है हाँ हुई है दो दफ़ा हुई है डॉक्टर इसरार साहब को जब वो जिंदा थे तब भी सुनते थे नहीं मैं अभी एजुकेशन जब से कर रहा हूँ तब से सुन रहा हूँ वैसे तो हम फ़िक़ा देवबंद से हैं उलमा देवबंद से तो मुफ्ती और भी बस स्कॉलर हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनको भी सुनते हैं अभी उनको भी मिले ऐसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को नहीं अभी कराची जाएंगे अगर मौका मिला तो मिलेंगे इंशाल्लाह अभी मिलेंगे नहीं जज़ाकल्लाह ठीक है अस्सलाम वालेकुम भैया वालेकुम सलाम क्या नाम भैया जी कलीमुल्लाह माशाल्लाह क्या नाम किधर से है भैया मैं लिया बकर से लिया जी बकर ये कितनी देर की ड्राइव है तकरीबन 8 से 9 घंटे इस्लामाबाद से फिर वहाँ से जो है झेलम आए तो 3-4 घंटे यहाँ पे भी लग गए अकेले आए जी अकेले आए जी खैरियत थी कैसे आना हुआ जी बस खैरियत थी इंजीनियर साहब को मिलने आए थे स्पेशल तो बड़ी खुशी भी थी और एक्साइटमेंट भी थी सुबह निकले हैं फिर रास्ते वगैरह भी बंद थे बड़ी मुश्किलात हुई लेकिन ये है कि आखिर में पहुँच रास्ते क्यों बंद थे पता नहीं कोई वही सियासी जो गर्म माहौल चल रहा है तो उसकी वजह से अभी भी बंद किया हुआ है तो रिश्का नहीं मिल रहा था फिर चलते चलते 5 किलोमीटर चला फिर ऐसे रिश्का कहाँ से ये इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं नहीं यहीं से झेलम पे उतरे हैं ना सिटी हाउसिंग है ना वहाँ पे उतरे आगे से फिर कोई आ नहीं रहा था इस तरफ
तो वो बड़ा मसला बन गया। तो वहाँ से वैसे ही फिर होगा पहुँच क्योंकि गए। रास्ते नहीं बंद। जी अच्छा ये बताएं इंजीनियर साहब को जब से आप सुन रहे हैं जी जी कोई मुखालफत भी है? नहीं, मुझे कोई मुखालफत अच्छा कोई मुखालफत नहीं, क्योंकि मैं तकरीबन 4 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने तारुफ कराया था, तो उन्हीं से फिर जो है डॉक्टर इसराज साहब को भी सुनना शुरू हो गए, और इंजीनियर साहब को तो पहले सुनते थे। हालांकि हम जो है हनफी हैं, ठीक है, और मतलब थे, अभी नहीं है। तो फिर मैं कन्वर्ट हुआ, फिर मैं सुनता रहा, फिर तहकीक की किताबें भी पढ़ी, इसके साथ तहकीक होती गई, फिर घर वालों को कन्वर्ट किया। अच्छा, अभी जो है सभी वाले साहब भी अभी थोड़ा करते हैं, उनको बता कर आया था कि मैं उस्ताद मोहतरम को मिलने जा रहा हूँ, तो कह रहे थे ये वो, मैंने कहा कोई बात नहीं। अबू थोड़ा जो है सख्त हैं, वो नहीं मानते, लेकिन बाकी सब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं लेकर आया हूँ। अपने दोस्तों को, अपने कोशिश करता हूँ कि जो चचाजाद भाई हैं उनको भी लेकर आऊँ। और मैं खुद जो है हमारा छीना शहर है, मैं भी छीना हूँ, तो वहाँ पे मैं जो है ऐसा करता रहता हूँ कि पोस्टर बना लिए या वो बांट दिए, या इंजीनियर साहब के जो ये लिखते हैं पैराग्राफ वगैरह, तो वो हाँ, तो वो ऑनलाइन निकाल के, तो उनकी प्रिंट निकलवा के मैं वो भी यानी कि दे देता हूँ दोस्तों को या किसी और को जो भी मतलब खुले दिमाग के वाले के जो पॉजिटिव सोचते हैं। तो वहाँ पे बड़ी मुखालफत है, ज़हरी बात है। हर बंदा कहता है कि इंजीनियर साहब ये हैं, तो हमें तो पता है भाई वो हक की बात करते हैं, और हम ऐसे नहीं कहते। हालांकि हम बात सुनते हैं, फिर उसको कंफर्म करते हैं कि ये कहाँ से कर रहे हैं, तो कंफर्म करते हैं, तो उसमें जो है ना कोई फिर गलत बात साबित नहीं होती। तो मुलाकात हुई? जी अभी मुलाकात हुई है, फ़ोटो सेशन भी हुआ है, तो अच्छा हुआ कि आज और कौन है? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चा? क्या नाम है? उमैस। उमैस जी। किधर से हो? मैं गुजरात से हूँ। अकेले आए हो? हाँ जी मैं अकेले आया हूँ। दरअसल बात ये हुई है कि रिज़ल्ट जब मेरा आया था ना, तो पास होने की खुशी में मैंने माँ बाप को कहा था कि यहाँ पे मैंने आना है। मन्नत मांगी? हाँ जी। मन्नत नहीं मांग ली? नहीं, मन्नत तो नहीं मांगी थी, लेकिन दरबार में जाना है। हाँ जी, माँ बाप को ये कहा था कि मैंने ना उनके पास जाना, उनको देखना। अच्छा हो गया पास? हाँ जी पास हो गए, और उन्होंने खुशी में यहाँ भेज दिया। अकेले आ गया हूँ, बैठ के लोकल आ गया हूँ। अच्छा, तो बस उनकी मोहब्बत में। अच्छा, फर्स्ट टाइम निकले हो? जी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। ठीक हो गया। घर से फर्स्ट टाइम अकेले निकले हो? हाँ नहीं, पहले मैं इतनी दूर कभी भी नहीं आया, वही लेकिन दूर का सफर पहली दफ़ा। हाँ जी पहली दफ़ा आया यहाँ। सही हो गया। अच्छा इंजीनियर साहब को सुनने का जो है वजह क्या बनी, और रोका नहीं किसी ने? रोका तो देखिए बहुत लोगों ने। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरे मस्जिद का जो सा इमाम है ना, वो मेरे से सलाम तक का जवाब नहीं देता अगर मैं सलाम करूं तो। इस कदर नफ़रत है। मैं बरेलवी ख़ानदान से हूँ, तो वहाँ पे नफ़रत झाड़ुओं वाली सरकार, जो सी मर्ज़ी सरकार को सारों को मानते हैं वो। तो बाकी हमें अगर बंदा सच बोलेगा तो हमें हर किसी का साथ देंगे, यही हमें इंजीनियर ने सिखाया, और यही हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। बेशक जी बेशक। हाँ जी, तो अगर इंजीनियर भी कोई गलत बात करे तो हम उसके भी खिलाफ हो जाए। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। वो भी चेंज हुए हैं? उनको बताइए। नहीं, उनको नहीं अभी मतलब इसमें इतना खास इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी अम्मी मेरी वजह से चेंज हो गई माशाल्लाह। तो बाकी मोहल्ले में भी काफ़ी दोस्त हैं जो इसे सुनते हैं और अमल करते हैं, सुन्नत से नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन वो है कि फिर कार साहब हमारे सारे खिलाफ हैं मोहल्ले में, तो ये बात है। सही हो गया। चलो मुलाकात की अंदर? हाँ जी अंदर? जी जी, मिले तस्वीर खिंचवाई मंदिर। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।